हौसले बुलंद हो तो कमजोरियां भी ताकत बन जाती है और जिनमें गिरकर उठने का दम हो जिंदगी मिसाल बन जाती है. Good evening, respected guests, teachers, parents, and dear students. A warm welcome to each one of you. I am Drishti Chaudhary, a proud member of Devbhoomi Divyangjan Gurukul, and it's my honor and privilege to host today's inspirational event. Today, we are gathered not only to celebrate a day, but to celebrate the strength, spirit, and the ability of millions around the world. World Disability Day reminds us that program is meaningful only when it includes everyone. A society grows stronger when it removes barrier, welcomes diversity, and creates space for every voice, every ability, and every dream. The global theme for this year is Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress. These themes inspire us to build a world where inclusion is not a promise, it's a practice, a responsibility, and a pathway to real social advancement. To begin this beautiful evening with divine blessing, I now invite Payal from Uttarakhand Rudrapur to present the Saraswati Vandana. Good evening, all of you. First of all, thank you so much, sir, for giving me the opportunity to perform. So, I will perform a Saraswati Vandana, which is set to Rag Hansadhvani. Sa 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 ni ni pa ga pa ga re sa re ga pa ni sa ga ni sa sa jai ma saraswati bhavani jai ma saraswati bhavani जय मां सरस्वती भवानी दयानी दुख हारिणी दयानी दुख हारिणी पाप विनाशिनी बुद्धि अभेदायिनी जय मां सरस्वती भवानी जय मां सरस्वती भवानी सरे गरे रे सरे ग पनि प प ग पनि स गरे रे सरि नि सरि प गरे ग पनि स गरे सनि प प ग प गरे सा सरे रे सरे रे सरे सरे ग पनि नि सा श्वेत हार गलमाल विराजे श्वेत हार गलमाल विराजे कर वीणा ध्वनि मधुर सुनावे कर वीणा ध्वनि मधुर सुनावे हस्त दया भक्तन पर राखे हस्त दया भक्तन पर राखे सुर की तुम हो दानी जय मां सरस्वती भवानी जय मां सरस्वती भवानी दयानी दुख हारिणी पाप विनाशिनी बुद्धि वरदायिनी
जय माँ सरस्वती भवानी, जय माँ सरस्वती भवानी, जय माँ सरस्वती भवानी, जय माँ सरस्वती भवानी. Thank you. Thank you, Payal ma'am, for the soulful beginning. To continue the spirit of today's theme, I invite Ananya from Jammu and Kashmir to share her meaningful and inspiring speech on World Disability Day. Respected all the dignitaries, teachers, and all my dear friends, good evening to all. My name is Ananya. I study in class 10th. I'm from Jammu. I study in Kendra Vidyalaya Sunjwa and I am the student of Devbhumi Divyangjan Gurukul. Today I'm going to give a speech on International Day of Persons with Disability. We have gathered here today on a very important day, the International Day of Persons with Disability. This tradition began in 1992 by the United Nations, not as a day of sadness or deficiency, but as a day of celebration and commitment. This is a time to honor the incredible strength, courage, and resilience of people with disabilities all over the world. This is a day for us to check our own progress and focus on securing the rights and welfare of every single person. The most important step we must take is correcting the way we think. We must fundamentally change public's attitude and mindset. We must stop we must stop seeing disability as something tragic or something that requires sympathy and charity. Pity is a weak emotion. It doesn't build anything. We must replace pity with respect and charity with rights. We must recognize that when someone faces challenges, the problem is not the person, but the world around them, the world that was built without them in mind. Our attitude must recognize that every person has a unique voice and a unique contribution to make. So, how should persons with disability be treated? They should be treated as leaders of their life with right to autonomy. Autonomy simply means self rule, the power to make their own decision about their education, healthcare, and career. To the status that persons with disability must enjoy is full and respected citizenship. They should be included in the workforce and they should be given the best and equal opportunities. And there should be laws that govern their community. Let the promise of this day be a call to action. Let us commit to tearing down those human made barriers of ignorance and inaccessibility. Let us work together to ensure that every person, regardless of their physical and cognitive differences, can lead a life by their dignity, choice, and unlimited potential. Thank you.
Thank you so much, Ananya, for your thoughtful words. Music has no language, no barriers. It speaks directly to the heart. Let us welcome Shubhajit from Odisha for a melodious Odia song performance. Hmm. Bansire tu radha radha dakana. 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 तू थारे डाकी दिल राधा ताकू लागे नु आए कनिंदा तू थारे डाकी दिल राधा ताकू लागे नु आए कनिंदा कान्हा निंदा रानिया रे आओ जड़ना बंसी रे तू राधा राधा डाकना बंसी रे तू राधा राधा डाकना बंसीर सात सुर तू गलु कि सबु होली बाजिले जेउ सुरे तू बुझी राधा खाली बंसीर सात सुर तू गलु कि सबु भूली बाजिले जेउ सुरे शुभुछि राधा खाली तोते आउ कान्हा के डाकिबा मना बंसीरे तू राधा राधा डाकना बंसीरे तू राधा राधा डाकना Thank you so much. Thank you, Shubhajit, for that beautiful melody. Poetry connects emotion with expression. I now invite Neha from Haryana to present her beautiful poem. नमस्कार सभी को। आदरणीय मुख्य अतिथि, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं मेरे साथियों, मैं नेहा, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रोशनी के शहर में अंधेरे मकान देखे हैं, बिना आंखों के तुमसे कहीं ज्यादा आसमान देखे हैं। तुमने बस इस जहां को देखकर मिटा ली हैं अपनी बेचैनियां, हमने उंगलियां फेर कर किताब पर कई जहां देखे हैं। मैं हर बात बोल लेता हूँ इशारों से अपने, जैसे दरिया बात करता है किनारों से अपने। तुम चीख कर भी खुदा तक पहुंच नहीं पाते, मेरा मौन बात करता है सितारों से अपने। हम बोल नहीं पाते मगर एक हुनर रखते हैं, होठों की हरकत से इंसान परख लेते हैं। हमने ना देखे कत्ले गम और फरेबी सूरतें, हमने तो छुकर जख्म के गहरे निशान देखे हैं। देखो उसके सामने तो सारा आसमां बाकी है, मगर परिंदे की जिद है बिन पंखों के उड़ा है। ये मेरी तुम्हारी हार जीत का मसला नहीं है, कामयाब वही है जो बिन पैरों के खड़ा है। वजूद की लड़ाई में तुमसे रहम की गुहार क्यों, तुमने तो सड़कों पे अधूरे भगवान फेंके हैं। बिना आंखों के तुमसे कहीं ज्यादा आसमान देखे हैं। जो तुम लाए हो दिलासा वो मुंडेर पर सजा दो, मेरे हौसलों को आंधियों से लड़ने की सलाह दो। उम्मीद के, हसरतों के, नए ख्वाबों के अखबार में मेरे नाम की खबर बने कोई ऐसी भी वजह दो। हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ कदम दर कदम, हमने तुम्हारे बाग के सारे गुलाब देखे हैं। बिन आंखों के तुमसे कहीं ज्यादा आसमान देखे हैं। थैंक यू। Thank you, Neha, for those touching words. To bring a divine essence to this evening, I invite Adwitya from Jaipur, Rajasthan to present our soulful song. मेरा नाम अद्वितीय गौड़ है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की आईसीटी कोर्स की छात्रा हूँ। मेरे गीत का शीर्षक मंजिल की ओर निकलना है। इस गीत के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि कभी
कभी हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। हर मंजिल तक पहुंचने का आनंद तभी मिलता है जब रास्ता कठिन हो। धैर्य कला ऐसी है तुमको मंजिल तक पहुंचाएगी। धैर्य कला ऐसी है तुमको मंजिल तक पहुंचाएगी। साहस धारण किया सफलता चलकर पग तक आएगी। साहस धारण किया सफलता चलकर पग तक आएगी। गर धूप समोगे जीवन में उतनी ही बड़ी शीत होगी। गर धूप सहोगे जीवन में उतनी ही बड़ी शीत होगी। संघर्ष बड़ा जितना होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। संघर्ष बड़ा जितना होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। जो करता त्याग दतीची सावन वज्र वृत्त संहार करे। जो करता त्याग दतीची सावन वज्र वृत्त संहार करे। चाणक्य नीति पर चलता जो वैगुणानंद पर वार करे। गर्भांग लक्ष्य तक पहुंचाना तो पीछे खींच छोड़ना होगा। गर्भांग लक्ष्य तक पहुंचाना तो पीछे खींच छोड़ना होगा। दशरथ माँ जी कहलाना है बस पत्थर एक फोड़ना होगा। दशरथ माँ जी कहलाना है बस पत्थर एक फोड़ना होगा। भगवान बुद्ध सा बनना है तो ऐसा ज्ञान जगाना होगा। भगवान बुद्ध सा बनना है तो ऐसा ज्ञान जगाना। मखमली सेज से उठकर लड़े जीवन युद्ध विराम नहीं। मखमली सेज से उठकर लड़े जीवन युद्ध विराम नहीं। संघर्ष समूचा रावण है जो लड़ न सका वो राम नहीं। संघर्ष समूचा रावण है जो लड़ न सका वो राम नहीं। इतिहास में नाम लिखाना है तो काल जीवन जीना होगा। इतिहास में नाम लिखाना है तो काल जीवन जीना होगा। तांडव करने की है ललक तुझे शंकर सा विष पीना होगा। तांडव करने की है ललक तुझे शंकर सा विष पीना होगा। उठ दौड़ छोड़ सारे मसले मंजिल की ओर निकलना होगा। उठ दौड़ छोड़ सारे मसले मंजिल की ओर निकलना होगा। उठ दौड़ छोड़ सारे मसले मंजिल की ओर निकलना होगा। उठ दौड़ छोड़ सारे मसले मंजिल की और निकलना होगा। मंजिल की ओर निकलना होगा। मंजिल की ओर निकलना होगा। धन्यवाद। Thank you, Advita, for that divine presentation. जीवन में हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो हार कर भी कोशिशें हजार करता है. These lines truly describe the personality of a man who turned challenges into the opportunity and darkness into a path of light for others. It's my privilege to introduce the visionary behind Devbhoomi Divyangjan Gurukul, our founder, Mr. Amit Singh Negi, sir. His life is a journey of strength, resilience, and inspiration. After losing his father at a young age, facing financial hardships, and late losing his eyesight in an accident, Amit sir could have given up, but he chose to rise. He supported his family by running a small STD booth while continuing his studies. Despite blindness, he completed software engineering and master in social work.
With deep belief in equality and inclusion, he has empowered more than 3,000 persons with disability through awareness drives, trainings, and employment support. Today, through Devbhoomi Divyanjan Gurukul, he provides free online computer training to visually impaired students across India, along with free assistance for screen reader and digital tools. With 14 plus years of experience, Amit sir has been honored by Government of Uttarakhand and many organizations. So, your work inspires everyone to believe that abilities are stronger than limitations. So, we humbly request you to share your thoughts and introduce the vision and the mission and journey of Devbhoomi Divyanjan Gurukul. मां शारदे को नमन करते हुए आज के इस पावन पर्व जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, विश्व दिव्यांगता दिवस एक हम दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा दिवस है जिसके दिन आज हम अपने मन में रखने वाले भाव, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को दिखाने का हम लोगों को जगह-जगहों पे, अलग-अलग जगहों पे मौका मिलता है, मंच मिलता है। यहाँ पे भी कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी-अपनी प्रेजेंटेशंस को देने का प्रयास किया। उस पे बात करने से पहले आज की जो हमारी मुख्य अतिथि महोदया निधि मैम, जिनका मैं पूरे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के परिवार की ओर से मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि मैम ने एक छोटी सी कॉल में हार्डली हमारी बात 2 मिनट की हुई होगी और एक छोटे से अनुग्रह में मैम ने आज के इस प्रोग्राम के लिए अपनी सहमति दर्ज की, जिसके लिए हमारा पूरा परिवार हृदय के अंतः स्थल से मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करता है और मैम का बहुत-बहुत स्वागत करता है कि मैम आई हमारे बीच में और मैम ने हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। और साथ ही साथ मैं मैम को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने जितनी भी परफॉर्मेंस सुनी है वो हमारे गुरुकुल के ही छात्र एवं छात्राएं हैं और ये सभी स्टूडेंट्स हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल, ये सिर्फ कंप्यूटर की शिक्षा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की शिक्षा तो हम लोग दे ही रहे हैं। 2020 से अभी तक हर साल हमारा एक लक्ष्य है कि हम भारतवर्ष के उस कोने तक पहुंचे जहां पर उन छात्र एवं छात्राओं के लिए शिक्षा, विशेषकर कंप्यूटर की शिक्षा, जहां तक उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आज इस पूंजीवादी दौर में कहीं ना कहीं शिक्षा भी काफी महंगी हो चुकी है। उसी को समझते हुए, क्योंकि जो परिवार सशक्त हैं वो तो अपने बच्चों को किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में या फिर बड़े स्कूल्स में आराम से पढ़ा पा रहे हैं, उनको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिनके जो कमजोर, एक तरीके से आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे बच्चे हैं, उन तक भी वही शिक्षा जो एक सशक्त परिवार है, जो पूंजीवादी दौर पे अगर हम कहें जो एक धनराशि के रूप में अगर देखा जाए तो सशक्त है, लेकिन अधिकार उन बच्चों का भी है जो भले ही आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, लेकिन जो उनकी मानसिक क्षमताएं हैं वो उतनी ही बेहतर है जितनी हर एक बच्चे की है। तो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का प्रयास है कि हम उन सभी बच्चों को हर वर्ष 30 ऐसे मेधावी छात्र, हालांकि इस वर्ष हम लोगों ने 15 सीटें जो है बढ़ा दी थी मैम, हर वर्ष हम 30 से 45 बच्चों को निशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ साथ में AI टूल्स और साथ में एंड्रॉयड और iOS का भी हम बच्चों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि आज हो रहा है, ऐसे समय समय पर कोशिश करते हैं कि हर महीने एक कार्यक्रम हो
जिसपे हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे वो बच्चे जहां पर उनको इस प्रकार की काउंसलिंग या इस प्रकार का कोई भी सेशन जल्दी से देखने को नहीं मिलता है, हम उनको अपने इसी प्लेटफॉर्म से, गुरुकुल के माध्यम से उनको देने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल कंप्यूटर के साथ साथ अगर मैं बात करूं, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चलती ही हैं, लेकिन इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और साथ ही साथ इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी हम लोग रनिंग में रखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा वेब एक्सेसिबिलिटी का एक कोर्स जो कि अभी इसी साल हम लोगों ने लॉन्च किया है, एक वो अभी चल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक चेस का जो एक ऑनलाइन हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जिसपे हमें बच्चों को आराम से सिखाने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल भविष्य की अगर योजनाओं की हम लोग बात करें, तो एक ऐसा ऑफलाइन सेंटर जिसके अंतर्गत डेली लिविंग स्किल्स एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल वो निभाती है, कि अगर बच्चे को अपना कोई भी काम करना है डेली लिविंग स्किल्स के अंतर्गत, अगर अच्छे से नहाना हो या अपने कपड़ों को धोना हो, बर्तन धोने हो, या फिर अपना अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह करना हो, तो कैसे हम उसको कर पाएं, वो सब चीजें सिखाना, चाहे वो उसमें आयरन करना हो या फिर अपना खुद का खाना बनाना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक बेसिक डेली लिविंग स्किल्स के अंतर्गत आनी चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा सेंटर जिसके अंदर ये सब चीजें तो बच्चों को सिखाएंगे ही, लेकिन साथ में बच्चों का फिजिकली और मेंटली फिट होना भी जरूरी है, तो जिसके लिए हम मॉर्निंग टाइम में बच्चों को योगा और साथ ही साथ एक जिम का भी एक कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को रेजिडेंशियल्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में कोशिश करेंगे कि उनको नियर बाय जो हमारे पब्लिक स्कूल्स होंगे, क्योंकि हम लोग स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि स्कूल्स ऑलरेडी बहुत सारे रनिंग में चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम बच्चों को इंक्लूजन्स के अंदर एक एडमिशंस बच्चों को प्रोवाइड करें, वहां पे उनका एडमिशन कराएं, और वहां पे आने वाले चैलेंजेस, अगर बच्चे को क्लासरूम में कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, ये सॉल्यूशंस हम बच्चों को अपने यहाँ पर गुरुकुल के अंदर प्रोवाइड करेंगे इवनिंग टाइम में। अगर मैं इसके अलावा अगर बात करूं तो एक बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा म्यूजियम जिसके अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि 2D, 3D, 4D, 8D और मैकेनिज्म टाइप में उनको बना के दिखाएंगे, ताकि बच्चा उन सब चीजों को ओरिएंटेशंस के साथ समझ पाए, उसकी अपने ब्रेन में उसकी इमेजेस को बना पाए और किसी भी चीज को आसानी से वो समझ पाए। इसको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को एक ई कंटेंट लाइब्रेरी, एक हाईटेक कंप्यूटर लैब और इसके साथ साथ एक अच्छा माहौल और एवरी मंथ एक एजुकेशन एनवायरमेंटल टूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे को वो सब चीजें मिल पाए जो अभी तक, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं, ऐसा प्रोजेक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं चल रहा है। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि हम बच्चों को ये सब चीजें प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चों का भी अधिकार उतना ही है जितना और बच्चों का है। तो हमारा प्रयास है कि हम वो सब चीजें बच्चों को देने की कोशिश करेंगे, उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ग्लोबली वो बच्चा तैयार हो, अगर वो इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ पाए। इस काबिल हम उसको बना के देना चाहते हैं कि बच्चा वो बन पाए। साथ ही साथ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की अगर बात करें तो इसके लिए अगर हमारा अभी प्रोजेक्ट है लगभग 50 to 60% कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक पड़े हैं हम लोग अभी, तो जिस कारण से अभी वो आगे का जो वर्क है थोड़ा सा पेंडिंग में है, वो अभी होगा जिस तरीके से हम उसको कोशिश करेंगे। और बाकी अभी देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के जितने भी छात्राएं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, तो हमारे स्टूडेंट्स आज ऑल ओवर इंडिया में लगभग 22 स्टेट्स के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हर स्टेट में हमारा बच्चा आज किसी न किसी संस्थान के अंदर, किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर हायर से हायर रैंक पोस्ट में बैठा हुआ है और बहुत प्रोवाइड कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स
बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको एप्रिसिएशन लेटर्स मिलते हैं और वो हमें जब बताते हैं कि सर आज हमें ऐसा मिला, आज हमने ऐसा काम किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज अगर मैं बात करूँ अपने उत्तराखंड से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। आज उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आज बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं और बहुत अच्छा अपना एक काम कर पा रहे हैं और जिसकी हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे द्वारा जो भी हम बच्चों को सिखा पाए, इस काबिल उनको बना पाए कि आज वो एक इंडिपेंडेंट अपना एक लाइफ को जी पा रहे हैं और अपना ही नहीं, अपने परिवार को भी अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। जब किसी परिवार में कोई दिव्यांगजन पैदा होता है, तो सबसे पहला ख़्याल आता है कि अब ये बच्चा हमारे लिए बोझ हो गया है। लेकिन आज वो ही बच्चे अपने परिवार को पाल रहे हैं। अपने पेरेंट्स को जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचता है, लेकिन बाद में जब वो ही पेरेंट्स को जब अपने पास रखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, उनको भी एक फ़ील होता है कि हमारे बच्चे के लिए जो हम सोच रहे थे, ऐसा नहीं था। अगर हमारे पास एक चीज़ नहीं है, तो उसके बदले पे हम बहुत कुछ करके दिखा पा रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स के लिए भी ये बोलूँगा कि आप लोग कभी भी डिमोटिवेट ना हों। बहुत सारी क्षमताएँ हैं, बहुत सारा कुछ करने को है। और आज की जो हमारी स्पेशल चीफ गेस्ट के रूप में मैम से भी अब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानेंगे हम, क्योंकि मैम माइक्रोसॉफ्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और मैम का मैं फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। पूरे परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ मैम। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your enlightenment guidance. Music touches us in magical way. I invite Simran from Jharkhand for a soulful music performance. नमस्ते सभी को। मैं सिमरन श्रीवास्तव झारखंड से आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफी चाहती हूँ। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। इंसान जब कोई है राह से भटका किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। ये आसमां ये ज़मीन चांद और सूरज किसने बना दिया
खूबसूरत कुदरत क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। थैंक यू। Thank you, Simran, for that heartwarming song. Every experience is a story, and every story carries a lesson. I invite Sharafuddin from Bihar to share his thoughts and experience with us. रोशनी की कमी नहीं बस नजर थोड़ी अलग है, रोशनी की कमी नहीं बस नजर थोड़ी अलग है, हर चुनौती पार करे जज्बा जिसका अटल है, हर चुनौती पार करे जज्बा जिसका अटल है, ना समझो इन्हें कमजोर, ना समझो इन्हें कमजोर, ये है हिम्मत की मिसाल, ना समझो इन्हें कमजोर, ये है हिम्मत की मिसाल, हर कदम पर है उड़ान हर मुश्किल को करे सलाम, हर कदम पर है उड़ान हर मुश्किल को करे सलाम, इनका हौसला ही है पहचान, इनका हौसला ही है पहचान, इन्हें मिले दुनिया में ही मुकाम। दिव्यांग दिवस है यह आओ सब मिलकर मांगे, दिव्यांग दिवस है यह आओ सब मिलकर मांगे, इनकी क्षमता को पहचाने इन्हें दे सम्मान। प्रतिष्ठित देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के मंच से मैं शरफुद्दीन गुरुजनों, सहपाठी गणों, विशिष्ट अतिथि तथा समस्त श्रोतागणों को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विशेष रूप से इस दिवस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु श्री अमित सर नेगी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम विकलांगता क्या एवं इनका उद्देश्य क्यों। विकलांगता यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति का शारीरिक अंग प्राकृतिक व ईश्वरीय इच्छा अनुसार अक्षमताग्रस्त हो जाए तथा सामान्य व्यक्ति के अपेक्षाकृत किसी कार्य को करने में सक्षम न हो पाए, जिसे विकलांगता घोषित किया गया है। इसे मनाने का उद्देश्य ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों में जागरूकता का संचार करना। 3 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नियमित रूप से दिव्यांग दिवस मनाने की अनुमति प्रदान की गई। ऐतिहासिक संदर्भ में कई दशकों पूर्व या पुरातन समय में समाज इन्हें निष्क्रिय, सहानुभूति की दृष्टि से या एकमात्र दया का पात्र समझ बैठा था, किंतु इसके विपरीत इन समस्त विकृत मानसिकताओं को तथा इन सीमाओं को लांघकर आधुनिक संदर्भ में वे समस्त दिव्यांगजन उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आधुनिक समय में शिक्षा जगत के साथ साथ विज्ञान, तकनीक तथा अनुसंधान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर दिव्यांगजन भागीदारी एवं महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समसामयिक आवश्यकता, समय व मांग को देखते हुए देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक एवं कंप्यूटर प्रशिक्षक श्री अमित सर नेगी सर ने देश के विविध राज्यों के समस्त दृष्टिबाधित छात्रों को तकनीकी व कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर स्वाभिमान जीवन जीने योग्य बना रहे हैं।
देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के 1 वर्षीय कोर्स ICT अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, AI टूल्स, इंटरनेट, स्क्रीन रीडर इत्यादि के तहत उन्हें प्रशिक्षित कर देश के विविध राज्यों में सरकारी व निजी विभागों में वे समस्त छात्र कार्यरत हैं, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SSC के विविध विभाग। संवैधानिक विधि अधिकार के तहत समस्त दिव्यांगजनों को समतामूलक जीवन, सम्मानपूर्वक जीवन एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अंत में गुरु ने जो राह दिखाई उस पर चलते हैं, गुरु ने जो राह दिखाई उस पर चलते हैं, हम अपनी दिव्य क्षमता से दुनिया बदलते हैं। नहीं है मोहताज किसी के, नहीं है मोहताज किसी के, आत्मविश्वास की दौलत है, नहीं है मोहताज किसी के, आत्मविश्वास की दौलत है। आपके ज्ञान की मिसाल से, आपके ज्ञान की मशाल से मिली हर चुनौती पर जीत है। आपने सिखाया कि विकलांगता तो एक बस दृष्टि है, असली ताकत तो मन में है, अनमोल आपकी सृष्टि है। धन्यवाद। Thank you, Sharafuddin, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, it is time to welcome a truly remarkable personality, our esteemed chief guest, Miss Nidhi Ma'am, Principal Product Manager at Microsoft. She is a leader who has dedicated her career to build technology that empower millions. With over 9+ years of experience, she has worked on some of the Microsoft most impactful accessibility product. Windows Assistive Technology, Narrator, Voice Access, Microsoft Search for Enterprise, and she is also a core member of the Disability ERG India chapter, championing sensitization, accessibility awareness, and inclusive workplace culture. She holds an MBA from IIM Ahmedabad and a degree in computer science engineering. What makes her journey truly extraordinary is her spirit. Being visually impaired herself, she actively mentor young people, test early stage accessibility products, and speak at major events to inspire changes. In her personal time, she enjoys yoga, learning dance forms, and exploring alternative therapy. She is a brilliant mind, a compassionate leader, a true symbol of empowerment. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to Miss Nidhi Ma'am. Ma'am, we request you to kindly address the gathering and share your inspiring thoughts. Thank you so much. I would say, first of all, really thank you to Amit sir to invite me to this and give me this opportunity to come and speak in front of all of you. Um, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई वुड से द प्रिविलेज इज़ माइन दैट मैं आप लोग सबसे आज बात कर पा रही हूँ. सो एज इंट्रोडक्शन में बोला गया था, आई हैव आई एम a computer science engineer and MBA from IIM Ahmedabad, and I'm working as a product manager in Microsoft from 9+ years. I am from Hyderabad, so I see कि अभी तक किसी ने तेलंगाना साइड से नहीं परफॉर्म किया था, so we have added another state at least to this. And आज के इस अवसर पर मैं अपना एक स्टोरी बताना चाहती हूँ. सो एज ड्यूरिंग द introduction, I was introduced that I have visual impairment myself. So I would want to take the next 5 to 10 minutes to talk through my story, and usse like after that what I would be interested is कि अपन सब question and answers करें, keep it interactive. अगर आपको कोई questions सता रहे हैं in terms of your education and career, हम वो चीज़ के बारे में पहले बात करना चाहेंगे ताकि हम
कोई भी आपकी क्वेश्चंस या हो तो वो सब दूर कर पाएँ। तो as a kid, I had normal sight. So I was born. I'm from Vijayanagaram in Andhra Pradesh, and I was a very naughty, notorious child, right? Like apple of the eye at in my home. So was having a very good life, I would say. And at the age of 18, I was diagnosed with retinitis pigmentosa. So that would render me blind with time, right? So of course, doctors didn't know it could be two days or 20 days or 2 years or 20 years, right? By which I could have lost my eyesight. Luckily, I would say I had started my computer science engineering by then, and initially my problems. I wouldn't say problem, but initially my eye condition was mostly affected in the night. So मुझे रात को night vision में दिक्कत होती थी, which did not stop me from completing my education. And my parents were very supportive. Parents and family and friends that I had who did not really think a lot about ye kya hai and how will um, she go on in her life. So essentially काफी support मिला to say कि hey, we'll take it as it goes, and we'll solve problems or any situations that come along the way, right? तो ऐसे हंसते खेलते आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि ये पता नहीं क्या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है उस टाइम पे. नॉट मैनी पीपल न्यू अबाउट द कंडीशन, तो वी यूज टू थिंक कि ये कुछ स्पेशल जेनेटिक चीज है जो मुझे आ गई है. एंड सो वी वर जस्ट लीडिंग आवर लाइफ्स विद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ. वंस दैट वाज फिनिश्ड, I think I started my CAT coaching, and that is when I started realizing that even when writing and reading from paper, I'm not able to complete my cases for my class prep for the CAT courses. So that's when I started feeling that I need some assistance or some assistive technology to support me. I started using high contrast mode. So I still had vision, थोड़ा मैं देख के पढ़ सकती थी, but I just needed contrast. जैसे generally हमारी किताबों में white background और black text होता था, तो I would reverse it with either video magnifier या digital books use करके हम reverse करके पढ़ते थे. Although इतना 100% अभी भी रीडिंग इतनी फास्ट नहीं हो पाती थी, बट जैसे ना कैसे कैट का कोचिंग ख़त्म किया एंड आई गॉट इनटू IIM अहमदाबाद, जो बहुत अच्छी बी स्कूल है. वहाँ जाने के बाद इवन यूजिंग डार्क मोड और लिटिल फॉन्ट साइज इंक्रीज डिड नॉट help me. So I had to figure out alternative options. आँखों में थोड़ा रेटिना इन्फ्लेमेट भी हो गया था. That is when I had to decide to take a medical leave from IIM Ahmedabad and spend 3 months at Bangalore in one such university. जैसे आप लोग ये गुरुकुल में वर्चुअली पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक फिजिकल फैसिलिटी था, तो वहाँ पे 3 months I spent, learned how to use screen readers, कैसे मैं efficient रह पाऊँ even at the same time, because तब तक मैं काफ़ी sighted थी and I was able to do things faster. तो हाउ कैन आई गेन द सेम एफिशिएंसी, वो सब काफ़ी अपने आप को होन किया. एंड देन आई वेंट बैक, जॉइंड IIM अहमदाबाद. ईजी नहीं था बिकॉज काफ़ी विजुअल, काफ़ी ग्राफिक सब्जेक्ट्स भी होती थी. स्क्रीन रीडर तभी तभी सीखा था और डायरेक्टली इतना हैवी कोर्स में चले गए थे. बट विद सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम क्लासमेट्स and professors, of course, हमने 2 years का पूरा कोर्स खत्म किया. And once I graduated, I joined Microsoft. I had also done internship at Microsoft as a product manager during my first year break. So I joined as an FTE, as in a full-time employee उसके बाद. And अभी 9 साल से within Microsoft various
प्रोडक्ट्स में काम कर चुकी हूँ. स्टार्टेड विद Cortana, फिर Microsoft Search for Enterprise, and last 5 years से I've been working on building assistive technology itself, like voice access, जो हमें using voice especially for people who cannot use their upper limbs, या इनफैक्ट कोई भी फॉर दैट मैटर वॉइस यूज करके अपना कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं, उसका एक प्रोडक्ट बनाया. एंड देन वेरी रिसेंटली आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन नैरेटर. जैसे आप स्क्रीन रीडर्स सीखते हैं तो विंडोज में एक इनबिल्ट स्क्रीन रीडर आती है, तो 2 साल से आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग नैरेटर एज अ प्रोडक्ट एज वेल. Otherwise, as I told, मुझे काफ़ी योगा, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी लाइक रेकी, एक्यूप्रेशर, ये सब में इंटरेस्ट है. डांस में इंटरेस्ट रखती हूँ. I would say during the entire process, 3 things worked for me, right? Support from people, फैमिली हो या प्रोफेसर्स हो या फ्रेंड्स हो, काफ़ी, या इवन समटाइम्स अननोन पीपल हो, बट सपोर्ट फ्रॉम पीपल played a big role because आपके चारों तरफ अगर आपको बढ़ावा देने के लिए और people who don't treat you differently, that is important. So support from people was one thing that helped me throughout my journey. Second, I would say policies, because reasonable accommodations policies hoti hai when you study. जैसे IIM में when I was doing coaching and exam दे रहे थे तो magnifier वगैरह का we had to request. Similarly, now that I'm in Microsoft and over the years मेरी पूरी vision जैसे कम होती गई and 100% readability zero हो गया, तो how can you ensure कि reasonable accommodations को आप use करके आपके लिए जो बैरियर्स हैं जो दूसरों ने क्रिएट कर रखा है एनवायरनमेंट में, उसको आप कैसे नेविगेट करके यू कुड गेट थ्रू इट. सो पॉलिसीज ने काफ़ी हेल्प किया. एंड देन प्रोडक्ट्स, राइट, लाइक ऑफ कोर्स हम सभी स्क्रीन रीडर्स हैं, AI टूल्स हैं लाइक बीमा AI, सीइंग AI, हम इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं पाते बिकॉज दैट इज़ आवर इंटरफेस टू द डिजिटल वर्ल्ड. So people, products and policies helped me throughout my journey. And yeah, I wouldn't say कि यहाँ ख़त्म हो गया. I mean, as Amit sir और जब मैं आज आप लोग सबके साथ बात कर रही हूँ, I heard Amit sir का जो vision है for the Gurukul and the offline physical facility that he wants to open. I'm really grateful कि मुझे ये opportunity मिला that I can share my story at the same time. In whichever way I can contribute, ताकि आप लोग सबका आपकी जो ये vision है for the Gurukul, this can be successful in near future is something I would wish for. And सभी लोगों ने जिसने आज perform किया, irrespective of किसी को आज मौका नहीं मिला, I am wishing all of you really all the best. काफ़ी अच्छा आप लोग सब कर रहे हो, and I wish all the very best for your future endeavors, both in terms of education and careers. So I'll pause here and I would like to see and hear from you कि अगर आपको कोई questions हैं in terms of anything जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया है, या आपको ऐसे if you want me to elaborate कि मैम इसके बारे में ज़्यादा बात कीजिए, तो वो भी हम कर सकते हैं. And feel free to call me Nidhi. And yes, can we unmute and take some questions now? Yes, बिल्कुल. Yeah. बड़ा अच्छा लगा मैम आपकी स्टोरी जान के, और आई थिंक कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा. जैसे कि मैम ने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी चीज़ें बताई हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे मैम, और इनके मन में बहुत सारे सवाल जरूर होंगे. तो क्योंकि पूरा जो ये प्रोग्राम है रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि डिसिप्लिन के साथ आप लोग प्लीज एक एक करके हैंड रेज कीजिएगा. दृष्टि मैम प्लीज मैम थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिएगा जिसका हैंड रेज. एक आई थिंक फहीम है ना? फहीम, आपका कोई सवाल है बेटा? फहीम है? नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. यस सर, आई एम अवेलेबल. ठीक है. गुड इवनिंग मैम. मैं DDG का सेकंड बैच का स्टूडेंट हूँ, और बड़ा अच्छा लगा आपके बारे में सुन के. तो मैम, अगर मैं आपसे कनेक्ट होना आपसे हमें अगर कुछ गाइडेंस चाहिए होगी, तो हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है.
हाँ, ज़रूर। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स या अपकमिंग पीपल को मेंटर भी करती हूँ। तो देयर आर 2 और 3 वेज़ टू कनेक्ट। एक तो अगर आप लिंक्डइन पे हो ऑलरेडी, इफ़ यू आर टू यंग देन लिंक्डइन इज़ नॉट एन ऑप्शन, बट अगर लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आई कैन गिव माय ईमेल आईडी टू अमित सर या फ़ोन नंबर आल्सो टू अमित सर, एंड he can share that with all of you in the group, and feel free to message me on WhatsApp, and then मैं आपको कॉल करूँगी basis you know, क्योंकि हम दिन में ऑफिस में रहते हैं, तो अराउंड द इवनिंग टाइम आई विल कॉल यू बैक। या जी यस मैम, बिल्कुल। श्योर मैम, आप अपना नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप सर को दीजिएगा जरूर। श्योर श्योर। ठीक है, फाइन, थैंक यू बेटा। ओके, मिधांस, नेक्स्ट सवाल मिधांस। Good evening, ma'am. I belong from Sirsa, Haryana, and I am from past 4 years. I am studying from Mr. Amit Singh Negi sir, and I have a very delightful experience. Ma'am, I would primarily like to ask that Microsoft have been developing a product named Copilot. It's a very much popular AI platform. So I would like to ask that I have not explored it yet, but I would like to ask that could you elaborate on some accessibility features that are provided in the Copilot? Sure. Yeah, so Copilot is the one of the AI tool from Microsoft, right? And Copilot is available across different products of Microsoft. So, for example, let's stick to, like, in terms of education, how you can use, right? So, if you have a document just which is like your textbook, or it's a course material that you have, you could use Copilot and ask Copilot either through chat or through voice to ask it to summarize it and like extract the key points, explain the course material in like easier language so that you can understand it better. So ये सब आप word, excel या powerpoint में you can do it. So summarization is definitely one thing that helps everybody, right, to easily understand like a big document. Similarly, you can generate content. So for example, you are given a task of giving a speech or generating an assignment. Now of course मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने assignments और homework के लिए पूरा Copilot ही use कीजिए, but initially, right, like to generate ideas या first draft generate करने के लिए you can chat with Copilot और brainstorm कर सकते हो Copilot से to get you the first set of ideas. PowerPoint में something that I really love is because we are all screen reader users, I put across my thoughts in a Word document and I use PowerPoint with Copilot and say, hey, here's the Word document. Could you quickly convert this into like a 4-slide or a 5-slide PPT? That of course then you have to go and edit, but at least the first job of creating the PPT from the Word document becomes very easy. These are just like few example scenarios I'm saying, keeping education in mind, but definitely there's a lot more that you can unpack with Copilot. Yes, ma'am, बिल्कुल. Next, Subhojit. गुड इवनिंग मैम, मैं सुभजीत बात कर रहा हूँ उड़ीसा से। सो मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि नैरेटिव में हम जब भी यूज करते हैं, बहुत अच्छा चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे कि ह्यूमनाइज टेक्स्ट टू स्पीच का रोल आउट होना विंडोज 11 के लिए, ये बहुत अच्छा चीज है। पर अगर हो सके तो वो विंडोज 10 में भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, आपकी तरफ से अगर कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए तो। थैंक यू सो मच। Yeah. No, we understand, but as companies, हमें the latest versions को updated रखना पड़ता है. But I understand the feedback. Yeah. Yes. Okay. ठीक है. Next, Gungun. Good evening, ma'am. I'm Gungun from Sonipat, Haryana, and the student of third batch of DDG ICT program, and currently learning web accessibility from Amit sir. So I have two questions. First is how we can get placement in Microsoft, like which are the skills are mandatory for getting placement in Microsoft. And the second one is how web accessibility helps us in getting placement or job in Microsoft. Got it. So first one, for skills,
I would say I'll take this opportunity for everybody, right? So because you are in different careers, I would say make sure that आपको जो भी career में interest है, you should hone your skills in that, so that आपको deeper knowledge हो, deeper expertise बन जाए, ताकि irrespective of the disability you are ready to be employed by whichever company you want, right? That's the first thing. Specifically in Microsoft, if you look at the kind of roles Microsoft में जो होती है, developer की होती है, product managers की होती है, project managers का होता है, consulting होती है, but typically tech related roles होती हैं. And then of course there's a small team जो finance, sales, marketing, ये सब की भी support, customer support, ये सारी roles भी available हैं. Now ऐसे मत सोचिए कि Microsoft में मुझे कैसे जॉब मिले, ऐसे सोचिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको अपना करियर प्रोडक्ट में बनाना है, डेवलपर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके डेवलपर बनना है, या सेल्स मार्केटिंग करनी है, या कस्टमर सपोर्ट करनी है. एंड देन अकॉर्डिंग टू द रोल दैट यू वांट टू वर्क ऑन, develop your skills for that role, जो core skills होती है for each role. And then of course, Microsoft क्या कोई भी company that gives you those kind of roles, they will, align and you can apply and get a job there. Specifically about web accessibility, within Microsoft, we don't have a lot of, we do a lot of web accessibility audits and testing, especially for the products we build, because हमारी product company है खुद की. But at the same time, a lot of testing and all of auditing is also something we leverage expert companies for, right? जैसे Accenture हो गया, TCS, these are companies where expertise होती है web accessibility की, तो हम वहाँ से लोगों को leverage करते हैं, but directly Microsoft में उसकी roles available नहीं होती हैं. मैंने फर्स्ट बताया था कि किस टाइप की रोल्स अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है. ओके मैम, थैंक यू सो मच. ओके, संबित बेटा, संबिता. गुड इवनिंग मैम, मैं संबित प्रकाश पात्रा बोल रहा हूँ उड़ीसा से, और मैं अभी देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से 4th ईयर का करंटली कंप्यूटर बैच में अभी कंप्यूटर सीख रहा हूँ और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कर रहा हूँ. मैं मेरा भी क्वेश्चन लगभग वही टाइप का था कि अगर हम कोई जैसे बड़ी कंपनी होती है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी हो गया, हम अगर उसमें अगर आज प्रोग्रामर या फिर आज डेवलपर ज्वाइन करना चाहे तो हमें कितनी तैयारियां करना पड़ता है, क्या आपने कैसे किया है उसे, और क्या क्या चैलेंजेस है, आपको कौन सी दिक्कतें आ रही थी, उसे थोड़ा डिस्क्राइब करें तो अच्छा. Sure. So first of all, अगर आपको प्रोडक्ट डेवलपर या प्रोग्रामर ज्वाइन करना है तो यू डेफिनेटली नीड अ डिग्री इन कंप्यूटर्स, राइट? या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या BSc वगैरह आप करिए इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स की MCA प्रोग्राम होती है, तो मास्टर्स की प्रोग्राम होती है, तो यू नीड टू बी either an IT or a computer science engineer, ये तो पक्का है. Then in terms of challenges, right? So definitely देखिए, in any role, not just this role, any role you go, there will be some challenges, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो, चाहे आप बाद में employment के लिए चाहे. What is more important is आप as a person कितने ready हो to navigate through the challenges, and to make sure that जो barriers आपको आ रही है, वो चीज़ आप कैसे खुद से सॉल्व कर पाए एंड ऑल्सो लेवरेज द कम्युनिटी अराउंड यू. तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एज अ डेवलपर तो काम नहीं किया है, बट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जब मैं काम करती हूँ, मेरा काम ये है कि आई नीड टू बी एबल टू एक्सप्रेस कि ये फीचर, फॉर जैसे गूगल में है कि रेज हैंड फीचर है, तो ये फीचर हम गूगल मीट में है, तो ये फीचर हम कैसे बनाएं, इस चीज़ का पूरा हम स्पेसिफिकेशंस जो बोलते हैं कि ये फीचर ऐसे होगा, ये ऐसे काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमें बना के देना पड़ता है. तो व्हेन वी डू दैट, हमें काफ़ी विजुअलाइजेशंस लगती है, राइट? लाइक ताकि बिकॉज विजुअली लोगों को, स्पेशली फॉर पीपल हु कैन सी, हु हैव साइट, उनको विजुअली
चीज़ें फ्लो चार्ट वगैरह पे या ऐसे यूआई में बना के दो, दे अंडरस्टैंड इट रियली वेल। तो जब मैंने ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, मैं काफ़ी अच्छे से उसको एलैबोरेट करके टेक्स्ट में या टेबल्स वगैरह में लिखती थी, बट माई टीम वुड नॉट रीड इट प्रॉपरली। उनको लगता था समझ नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने विजुअली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बैक देन इन 2016 जब मैंने ज्वाइन किया था, वी डिड नॉट हैव जनरेटिव एआई टूल या ऐसी कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं अवेलेबल थी कि मैं बोलूं और अपने आप फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम बन के आ जाए। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, सिंस मुझे थोड़ा विजन था पहले, तो साइट था पहले, तो मैं एक पेपर पे ऐसे या बोर्ड पे ड्रॉ करके बता देती थी। एंड आई यूज्ड टू गेट द टीम टुगेदर कि प्लीज आप लोग, अब मैं बताती हूँ आप समझिए, एंड सो ऑन, राइट। बट नाउ फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन इज कि यूज वन ऑफ द एआई टूल्स, आप समझाइए आपको क्या करना है, और वो खुद से पूरा मॉक या फ्लो चार्ट या पूरा प्रोटोटाइप बना के दे देता है। तो विथ टाइम यू हैव टू इवॉल्व डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, work with the people and come up with creative ways to solve your problems, is what I would say. And I have given an example of one problem. Yeah. जी मैम, ओके, थैंक यू संविदा। मैम ने बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दिए और बहुत सारी बातचीत करी है। अभी और बच्चों का हैंड रेस तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, तब तक मैम मेरे कुछ सवाल हैं। हाँ, पूछिए। बच्चों की तरफ से हैं थोड़े से। यस। जब एक विजुअली इम्पेयर्ड मैम एक एमएनसीज कंपनीज में वर्क करता है और वहां पे बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जैसे भी आपने बोला कि टीम समझती नहीं है ना, तो वहां पे किस प्रकार के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और क्या एक साइटेड सोसाइटी एक विजुअल इम्पेयर्ड को आसानी से एक्सेप्ट करती है या वहां पे भी चैलेंजेस है? सो लेट मी अनपैक इट, राइट। देखिए, टीम को चैलेंजेस थोड़ी रहती है, नॉट बिकॉज उनकी इंटेंशन गलत है, इट इज बिकॉज समटाइम्स people are not aware, right? Now हम काफी in general in society, awareness programs, especially through things like World Disability Day and other days, काफी awareness programs बढ़ रहा है। तो आजकल ऐसा भी नहीं है, especially MNCs वगैरह में काफी ऐसे programs होती रहती हैं। तो many people are aware कि people with disabilities can also work, can be successful, right? But होता क्या है कि they have not had first hand encounter, तो खुद की लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ सुना है बट अपने टीम में नहीं देखा है या किसी के साथ डायरेक्ट उन्होंने काम नहीं किया है, राइट? तो बिकॉज वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस की डीपर अवेयरनेस, आई वुड से। तो थोड़ी चैलेंजेस इनिशियली जरूर आती है बिकॉज अब उनको नहीं पता कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, या आपको नहीं पता कि उनको भी ये भी नहीं पता कि वो कब सपोर्ट करे वर्सेस नहीं करे, राइट? दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। तो couple of things that we can do as individuals, as employees, as colleagues is be very open minded, right? Like talk to them about it. First of all, खुद के मन से ये हटा दीजिए कि हमें challenges आएंगी या हमें accept नहीं कर रहे हैं, right? Have a very open conversation. For example, first day at Microsoft, 2016 May 2nd, I still remember the date. तो तब तक मैं केन यूज नहीं करती थी, वाइट केन। तो मैंने इंटर्नशिप किया था माइक्रोसॉफ्ट में, बट मैं केन यूज नहीं करती थी उस टाइम पे बिकॉज ऐसे विजन सपोर्ट करता था, साइट सपोर्ट करता था टू नेविगेट थोड़ा थोड़ा कैसे भी। बट बाय द टाइम 2016 में मैं ज्वाइन की थी तो साइट सपोर्ट करना बंद हो गया, तो आई डिसाइडेड कि मैं केन यूज करूंगी। सो नाउ माय मैनेजर जो थे उस टाइम पे, ही एक्चुअली सॉ मी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। आई डिड नॉट वर्क विथ हिम, बट मैं दूसरी टीम में थी एंड वी हैड इंटरैक्टेड। उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था आफ्टर द इंटर्नशिप, तो ही न्यू दैट आई वाज कमिंग। बट नाउ दैट आई एंटर्ड विद अ वाइट केन, he actually was very surprised because he knew I was there. He interviewed me, but somehow he never realized that I had blindness, because visually, when you physically look at me, you won't be able to realize that, because as I said, I lost vision later in life. Physically कोई deformity नहीं है, so people don't realize even today.
Now, that day when I entered, he was very clueless. Okay, he was very clueless. Things happened, and by the evening around 4 p.m. हम लोग गए थे and we started talking. तो उन्होंने ऐसे बोर्ड पे, काफी नए लोग आए थे, तो उन्होंने बोर्ड पे ऐसे काफी कुछ लिख रखा था कि हमारी टीम स्ट्रक्चर ये है, दिस दैट, राइट। और वो मुझे पूरा वो देख के वो ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो आई वॉज द पर्सन हु हैड टू ब्रेक द आइस, राइट। तो आई हैड ओपनड अप, आई सेड, हे, आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट यू आर पॉइंटिंग एट, एंड देन आई ओपनड अप कंप्लीटली। थ्रू द वीक वेरियस सिचुएशंस हैपेंड जिसमें मैंने और उनको बताया कि वेन एवर यू क्रॉस एंड आर टॉकिंग टू मी, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम लगेगा टू प्रोसेस योर ऑडियो। आई वेंट एंड स्पोक टू एवरीबडी, 2 or 3 people that I had to work with. अगेन सबको डे 1 इंफॉर्मेशन दे के ओवरलोड नहीं करना है, बिकॉज देन पीपल आर अनश्योर कि आपके साथ काम कैसे किया जाए। बट in those first 4 to 5 weeks, धीरे धीरे जैसे situations आई, I proved myself because I was able to contribute. That's why I was saying कि skilling is important. पहले अपने को पूरी subject और अपने we need to make sure कि हम अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स बने। तो आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, एंड जैसे जैसे सिचुएशंस आई, आई टोल्ड पीपल कि इसमें ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो जाए इन स्टफ लाइक दैट, या मैं ऐसे करूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। इट कुड बी बोथ वेज, राइट। सो चैलेंजेस आती है, इट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द जॉब। people are open, they are just not deeply aware, and we need to play an active part, because all of us will have different ways we want accommodations, or we want to do things, or we need support for. Sorry, I was long, but I thought I'll give an example because वो याद नहीं, रहेगा। जरूरी है मैम, बिल्कुल जरूरी है, बच्चा Yeah. जरूरी है। अच्छा, एक सवाल और मैम बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है, वो एक विजुअल इम्पेयर्ड है ना, तो उसके मन में सवाल आता है, मैं अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, आज तो हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है ना, तो क्या एक कंपनी उस व्यक्ति को लेना पसंद करेगी कि वो एक विजुअल इम्पेयर्ड है, या फिर उसको लेना पसंद करेगी जो कि एक साइटेड पर्सन है? इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो वहां पे क्या वो कॉम्पीट कर पाएगा उन सभी साइटेड्स के साथ, एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन एक एज अ डेवलपर के रूप में? तो ये एक बड़ा असमंजस सा रहता है, डाइसी सा रहता है बच्चे के लिए कि क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, उस फील्ड को चूज करूं कि ना करूं, बहुत कंपटीशन है ना। तो इसमें क्या सोचना चाहिए मैम ऐसी कंडीशन में बच्चे को? कंपटीशन हर फील्ड में है, आई वुड से, राइट। हम ऐसे दौर में हैं कि कंपटीशन कहाँ नहीं है, बट इफ दैट इज समथिंग जहाँ आप अपनी एक्सपर्टीज इतना बढ़ा लो, टुडे टेक्नोलॉजी इज नॉट लिमिटिंग, राइट। आई साइटेड होस्ट, इनफैक्ट आई रिमेंबर अभी 2-3 हफ्ते पहले 2 डेवलपर्स आए थे जो बाहर काम करते हैं, एंड हमने माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें बुलाया था जस्ट टू टॉक विद देम, बिकॉज हम नैरेटिव पे काम करते हैं। उन्होंने द डेवलपर्स ने ऐसे 1-2 इंस्टेंसेस और एग्जांपल्स हमें बताए कि यार ये चीज़ तो मैं साइटेड यूजर से भी जल्दी कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज मैं स्क्रीन रीडर यूज करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज लाइक दैट, जरूर थोड़ी चीज़ें स्लो डाउन भी होती है, बट एज कंपनी आजकल इतनी अवेयर हो गई है कि दे डोंट डिफरेंशिएट, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, दे डोंट डिफरेंशिएट बेसिस द एबिलिटी। अगर आप इतना अच्छा स्किल और एक्सपर्टीज अपने आप में डेवलप कर लो, तो देन योर प्रोफाइल एंड साइटेड यूजर का प्रोफाइल में कोई अंतर नहीं बचता। सो कंपनीज आर जनरली ओपन, वी शुड नॉट हैव दोज doubts and confusion in our mind. If we think this is something we love and we are passionate about, we should just go ahead and go so deep in it that you are the best in the field, right? बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, अक्सर होता क्या है कि बच्चे के मन में एक सवाल और भी होता है कि कंपनी का सिलेक्शन कैसे होता? कोई भी कंपनी हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, कोई भी हो, ठीक है ना, बड़ी कंपनीज में अगर बच्चा जाना चाहता है, तो ऐसा वो क्या प्रिपेयर करे, क्या वो ऐसा अपने आप को तैयार करके चले कि हाँ वो जिस जगह जाना चाहता है वहां उसका सिलेक्शन हो? स्किल्स की तो आपने बात करी है कि भैया ठीक है, स्किल्स अपने पास है, लेकिन स्किल्स तो औरों के पास भी है ना, लेकिन ऐसा वो क्या करे, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे? ऐसा बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर ऐसा हम क्या करें कि हम एक विजुअल इम्पेयर्ड भी और कंपनी हमें सिलेक्ट करे, वो बोले हाँ
कि मैं साइटेड के बजाय मैं विजुअल इम्पेयर्ड को लेना पसंद करूंगा इस काम के लिए। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, कंपनी जनरली ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करती है नहीं कि साइटेड वर्सेस विजुअली इम्पेयर्ड, राइट? जी इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। हाउएवर जो द अदर क्वेश्चन है कि बिकॉज कंपटीशन इतनी ज्यादा है, एवरी स्टूडेंट नीड्स टू स्टैंड आउट, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है नहीं है, डजंट मैटर। हाउ डू यू स्टैंड आउट your profile in this competitive environment is a definite thing that is in our hands, right? अब कंपनी कैसे डिसाइड कर पाएगी, वो कंपनी के हाथों में। तो जो अपने हाथ में है उसको अपन थोड़े टिप्स से बेटर कर सकते हैं। आजकल कम्युनिकेशन हैज बिकम de facto important, so make sure you are really strong at communication in a short possible manner, right? How do you do impactful communication and storytelling? चाहे वो अपने खुद के बारे में आप बोल रहे हो या आपके काम के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, how do you like communicate really well? That is important. Two, these days it's matlab, this is again not just for Microsoft but in general, how are you able to create influence, right? Like influence could be in terms of सर जैसे आप चला रहे हैं ये गुरुकुल, यू हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर hundreds of students जिन्होंने पास किया है and other respective adjacent people around them, right? So how are you able to create influence in the field जिसमें आप expertise बन रहे हो? So for example, अगर आप developer हो तो बिफोर ज्वाइनिंग एनी जॉब आप कैसे उसकी स्किल्स में एक्सपर्टीज बना रहे हो और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ईदर बाय राइटिंग पेपर्स और रिसर्च, या उसको पब्लिश करा रहे हो, या आप एक कम्युनिटी रन कर रहे हो जिसमें यू आर मेकिंग श्योर दैट द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इज बीइंग स्पोकन अबाउट, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट, एक्सेट्रा. सो दैट ऑल्सो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, विच आपने बोला ही है, स्किल्स में बिल्कुल कमी मत छोड़िए. लाइक मेक श्योर यू आर, मैंने अभी ये चीज़ बहुत बार बोला है कि मेक श्योर आप उस चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट बन जाए. So 3 things: communication, second, how do you influence in the community, and third, I would say ki hone your skills and become an expert there. ओके, एक बच्चे ने मैम हैंड रेज किया है, सोनू. Sure. प्लीज एक लास्ट सवाल लेंगे मैम, फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है? Sure. जी. हेलो मैम, गुड इवनिंग. Hello. मैम, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि आजकल जब हम कभी सरकारी जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं और जब संस्थाओं में काम करते हैं तो मैम जॉर्ज और एनबीडीओ को लेकर भी सिक्योरिटी पर्पस को लेकर जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर कोई और गवर्नमेंट सेक्टर, तो सर मैम वहाँ काम करने के दौरान उनको थोड़ा असहज फील होता है, जैसे उनको लगता है सिक्योरिटी का खतरा है. तो ऐसा कुछ भी है क्या मैम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने पर? देखिए, इंडिविजुअली एप्लीकेशंस में एज सच कोई वैसा खतरा नहीं है. ऑल्दो कंपनीज को अपने खुद की पॉलिसीज जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू यूजिंग एनी एप्लीकेशन, चाहे विच इज नॉट समथिंग इन हाउस दैट दे हैव क्रिएटेड, वो रहता है, राइट? लाइक पीपल एंड कैन यू ऑल हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, yes ma'am. Okay, sure. So definitely, I mean, there's nothing wrong अगर companies अपना कुछ policies के वजह से they have some restrictions or reservations on using certain applications. इसीलिए हम मतलब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट इसीलिए हम माइक्रोसॉफ्ट में नैरेटर जो इनबिल्ट आती है हर विंडोज पीसी, इसका भी वी वांट टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को चलाना आए, ताकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, you can still use narrator which is inbuilt and rely on it and complete your jobs, whichever tasks you are doing on the computer. So as people, we should be aware of all the things available out there, and of course companies के साथ dialogue and काफी discussions के साथ they are open in general to make sure कि कोई भी application, but हर company के तरफ से मैं वो चीज नहीं बोल सकती हूँ, right? तो I would say prepare ourselves and use anything inbuilt also, उसकी भी शिक्षा लीजिए.
जी। यस मैम, नहीं, बिल्कुल, थैंक अभी यू मैम वेरी जो हम लोग बच्चों को स्क्रीन रीडर करवा रहे हैं उसमें नरेटर, एनवीडिया और जॉस तीनों ही हम लोग थैंक यू। सिखाते हैं। नरेटर की कुछ अभी हमें जो अभी लेटेस्ट 2021 सॉरी विंडोज 11 में जो हम लोगों को फीचर मिला है, बहुत अच्छे फीचर्स उसके अंदर मिले हैं। इवन देन जो जॉस और एनवीडिया नहीं कर पा रहा है वो नरेटर कर पा रहा है, तो वो बड़ा That's अच्छा लगता है। एक चीज बहुत अच्छी लगी हमें अभी नरेटर के अंदर, जो ह्यूमन वॉइस आया है ना, नेचुरल वॉइस के नाम से। स्टार्टिंग मैंने जैनी को देखा था, अभी उसमें और भी बहुत सारी वॉइसेस ऐड हुई हैं, तो बड़ा अच्छा पार्ट है वो बड़ा अच्छा लगता है। अभी उसके ऊपर एक छोटी सी हमने मैम एक कॉमेडी टाइप भी बनाई है। अभी हमारे स्कूल्स में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो I उसमें see. हम लोगों ने उसको बनाया है थोड़ा सा, I और see. बड़ा अच्छा है। उसको कोशिश कर रहे थे कि यहाँ करेंगे, लेकिन शायद वो थोड़ा सा आज बहुत ज्यादा प्लान, थोड़ा सा हमारे चेंजेस थे, तो उसको इधर कर नहीं पाए। लेकिन उसका मैं एक रिकॉर्डिंग आपको जरूर भेजूंगा, तो आई थिंक जरूर। आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हिंदी में जो स्पेशली हेमंत और कल्पना को रखा गया है वो बड़ा अच्छा है उसमें। तो Oh, दो that's लाइन, really nice. हाँ, वो बहुत सारी Yeah. चीजें बहुत अच्छी है। यानी जो मैं बता रहा हूँ, जो एनवीडीए नहीं कर पा रहा है या जॉस नहीं कर पा रहा है, जैसे कि अगर मैं हिंदी टाइपिंग के दौरान मात्राओं की अगर बात करूं, तो छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ऐसा एनवीडीए नहीं बोलता है या जॉस भी नहीं बोलता है, लेकिन नरेटर उस चीज को प्रोनाउंस करता है, तो वो बड़ा अच्छा Very लगता है। तो बड़ा अच्छा है, जैसे डे बाय डे, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से एक्सपी के टाइम से मैं विंडोज को यूज कर रहा हूँ। आज अपना विंडोज 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर वर्जन के अंदर नरेटर ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। आज 2011 में अगर अभी जो मैम एक चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है नरेटर में, वो मिलता है वेब पेजेस के अंदर। Yeah. बस, बाकी अगर मैं सिर्फ एक विंडो को चलाने की कोशिश करूं, अगर मैं वेब पेजेस को अभी हटा दूं, ब्राउजर्स को हटा दूं, तो उसके अलावा मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं पूरा अपना विंडो को ऑपरेट कर सकता हूं एक नरेटर से। उसके अलावा मेरे को ना एनवीडिया की जरूरत है, ना मुझे जॉस की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे जाना है वेब पेजेस में, तो वहां पे मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं नरेटर I को। see. I ठीक है see. ना? हम तो जरूर ऑफलाइन बात करते हैं अमित सर, एंड जी जी देखते हैं कि क्या चैलेंजेस है, बिल्कुल ताकि हम उसको भी जी, इम्प्रूव कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चलिए, हम प्रोग्राम के लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। चलिए दृष्टि मैम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 2 मिनट और लेंगे मैम, फिर वाइंड अप करते हैं। Yeah, sure. ठीक, थैंक यू सो मच। माननीय अतिथि, शिक्षकगण, हमारे विशेष प्रतिभागी और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों, जैसे जैसे सूर्य ढलता है, वैसे वैसे एक सुंदर दिवस याद बन जाता है। इसी तरह हमारा आज का कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और याद बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम के समापन से पहले मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि निधि मैम का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने कार्यक्रम की शोभा को कई गुना बढ़ा दिया। उसके बाद मैं हमारे मार्गदर्शक श्री अमित सिंह नेगी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसने इस कार्यक्रम के विचार को आकार में लाए। उसके बाद हमारे प्रतिभागी, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमारे यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों के मन को जीत लिया। हमारा मंच आप सभी को नमन करता है। हमारे गुरुकुल की टीम, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन से लेकर सफल होने तक अपना सहयोग दिया, आप सभी का धन्यवाद। अंत में हमारे इस कार्यक्रम की आत्मा, हमारे दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम अधूरा था। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी कार्यक्रम का अंत विदाई नहीं, बल्कि एक नई उड़ान के लिए बढ़ाया हुआ कदम होता है। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अब लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी अमित सर, और सब लोगों से आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।